the coordination number of a lattice point present in a crystalline solid. कोई भी crystalline solid में जो atoms रहेंगे, whatever the constituent particle present in a crystalline solid, वो constituent particle का coordination number कैसे determine करते हो? How to determine the coordination number of any atom present in a crystalline solid? अब समझो A is a crystalline solid which is mainly made up of what? Two atoms, X and Y से बना हुआ है. X and Y are considered to be the two constituent particle present in what? A crystalline solid known as A. These X and Y present in a crystalline solid known as A. It is mainly arranged in A pattern में arrange हुए. A pattern. A pattern means what? अब यहाँ पे crystalline solids are having regular pattern of arrangement. तो this is the X बोल के समझो. Lattice point, each atom present in a crystalline solid get represented by what? Dot or sphere. This is one atom. This is the next one. This is the third, fourth, fifth, sixth, seventh. It is the arrangement. If आपको पूछा गया कि this is an atom, एक atom है, वो X तो रहने दो, Y तो रहने दो, इसका coordination number क्या होगा बोल के पूछा गया. What is the coordination number of this atom present in a crystal system बोल के पूछा गया. तो AA pattern means what? It is a layer 1. A. Second layer is as similar as that of first. So this is a A. Third layer is as similar as that of first A. This pattern of arrangement we generally call it as AA pattern of arrangement बोलते, where all the layers present in a crystalline solid get arranged in similar manner. इस पैटर्न को हम AA पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट बोलते. अब कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक एटम लेके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया तो कैसे डिफाइन करोगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम? AX है समझो, X Y X Y Y X Y, ऐसे ही चलेगा. दिस इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट. अब आपको पूछा गया व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल सिस्टम. तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दोज आर एडजेसेंट टू X, दोज आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ दिस एलिमेंट. The total number of atoms, those are total number of neighboring atoms, those are in contact with X, contact में रहने चाहिए. Those are directly in contact with X, that will provide us the coordination number of X provide करेगा. अब ऐसे पूछा गया what is the coordination number of this Y बोल के पूछा गया. तो Y का coordination number क्या होगा? The total number of atoms those are directly in contact with Y. Y का contact में the total number of neighboring atoms those are in contact with Y, that is the coordination number of Y बोलते हैं. Then what is the coordination number of Y here? क्या होगा? देखो नेबरर बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. Out of the 8 atoms, only 4 atoms are directly in contact with Y. So the coordination number of Y is considered to be how much? 4. The total number of neighboring atoms, those are in contact with the atom present in a crystal lattice or the crystal system, we generally call it as coordination number of that atom बोल के बोला जाता है. अब X का देखोगे तो कितने एटम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है? 4. तो coordination number of X is considered to be what? Getting? Those must be in contact with that central metal atom के contact में रहना चाहिए. That is considered to be the coordination number of that central metal atom or ion बोल के बोला जाता है. The coordination number of any central metal atom or the ion present in a crystalline solid is nothing but it is total number of atoms those are directly in contact with that central metal atom. That will gives us the coordination number दे देगा. Getting the thing? समझ में आ रहा है? Oh, one. The next one समझ में आया है? The next bit edge length बोल के बोला जाता है. क्या बोलोगे? Edge length. It is nothing but what?
एज से क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर किया जाता है। गेटिंग द थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एज लेंथ, एज लेंथ का मतलब क्या होगा, देखो यहां पे एज लेंथ का मतलब क्या होगा, एज लेंथ इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन two neighboring atoms. This is the one atom and is the another atom. They are neighboring to each other. The distance between two neighboring atoms, those must be in contact with each other. Contact में रहना चाहिए. The distance between two neighboring atoms, those are in contact with each other. That will generally provided, generally assigned as what? क्या बोल के लिखा जाता है? Age length. It is a distance. अब देखो यहां पे एक एटम है, नीचे एक एटम है, दीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, दोनों कॉन्टैक्ट में है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस वी कॉल इट एज व्हाट, एज लेंथ बोलते हैं। अब यहां पे एक एटम है, यहां पे एक एटम है, those are in contact with each other, that distance between these two neighboring atoms, those are in contact with each other. neighbor है मगर contact में नहीं है, तो that is not considered as what, age length बोल के consider नहीं किया जाता है। तो the two neighboring atoms, the distance between the two neighboring atoms, those are in contact with each other, that will generally provides us what, age length provide करता है। It will generally provides us edge length. So edge length is nothing but it is distance between two neighboring atoms. ठीक है, नेबरिंग पॉइंट्स बोल के भी बोला जाता है, लैटिस पॉइंट बोल के कंसिडर करोगे। नेबरिंग एटम्स, दोज आर in contact with that we generally call it as what, edge length. अब देखो मैंने ये चारों पॉइंट को मिला दिया जो नेबरर है, मिलाने के बाद एक हमें यूनिट सेल मिला, यूनिट सेल में एक एंगल क्रिएट होता है, एंगल क्रिएट होगा, दैट एंगल वी कॉल इट एज एक्सियल एंगल बोलते हैं, एक्सियल एंगल और इंटरफेशियल एंगल बोलते हैं। Getting the thing? When you join the points, all the points which are adjacent to each other will get one unit cell मिलेगा, स्क्वायर यूनिट सेल मिला है। तो यहां पे एक एंगल क्रिएट होगा, that angle we generally call it as what, axial angle or interfacial angle. देखो edge lengths are generally denoted by the symbol A, B, C, ऐसे denote करते हैं। A is the distance between two neighboring atoms, those are in contact with each other, ऐसे B, ऐसे ये। सर इधर ये क्यों लिया, दोनों सेम ही रहता है स्क्वायर में, all the sides are remains सेम रहने से तो एज लेंथ मैं दो ही ले रहा हूं, ए बी बोल के ले रहा हूं, वेर ए एंड बी आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो एक्सियल एंगल का मतलब क्या है, व्हेन यू जॉइन द लैटिस पॉइंट प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल सिस्टम विल गेट वन यूनिट सेल मिलेगा, इन दैट यूनिट सेल देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ एन एंगल क्रिएट होगा, दैट एंगल इज जनरली डिनोटेड बाय व्हाट, अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। दिस अल्फा बीटा गामा आर द एक्सियल एंगल्स बोल के बोला जाता है, प्रेजेंट इन एनी क्रिस्टल सिस्टम। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एक्सियल एंगल व्हेन द एटम्स गेट अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, जो यूनिट सेल डेवलप होगा उसमें क्या एंगल डेवलप हो रहा है, दैट वी जनरली कॉल इट एज व्हाट, एक्सियल एंगल और इंटरफेशियल एंगल्स बोलते हैं। दे आर जनरली डिनोटेड बाय व्हाट, अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। गेटिंग द थिंग, दीज आर द थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। देन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्या बोल के लिखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल बोल के लिखो, यूनिट सेल बोल के पढ़ा था। देन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल।
गेटिंग द थिंग। देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स, थोड़ी जगह पे जहां जहां पे लैटिस पॉइंट नाम आएगा वहां पे मैं एटम बोल के लिया तो भी चलता है, बिकॉज ईच एटम इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, लैटिस पॉइंट, स्फीयर और डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। तो बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स in a crystal system, the unit cells get mainly categorized into three classes. Three classes में categorize किया गया है. The first one, one dimensional unit cell बोलते हैं. वन डायमेंशनल यूनिट सेल. वन डायमेंशनल यूनिट सेल का मतलब क्या है? कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वट एवर द एटम्स और द आयॉन्स और मॉलिक्यूल्स, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में जो एटम्स रहेंगे और आयॉन्स रहेंगे और मॉलिक्यूल्स रहेंगे, व्हेन दे गेट अरेंज्ड इन वन प्लेन, गेटिंग द थिंग, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बोल के लेते हो. इफ एनी क्रिस्टल सिस्टम, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में जो भी एटम्स रहेंगे, आयॉन्स रहेंगे, दे गेट हैज टू बी अरेंज्ड इन ओनली वन. एक्स प्लेन में तो अरेंज होने दो, वाई प्लेन में तो अरेंज होने दो और जेड प्लेन में तो अरेंज हो. दोज हैज टू बी अरेंज्ड इन ओनली वन प्लेन. अब देखो, दीज आर द नंबर ऑफ एटम्स 1 2 3 4 5 6. These are the number of atoms present in any crystal system. एक ही प्लेन में अरेंज हो रहा है, वर्टिकल में तो होने दो और हॉरिजॉन्टल पे होने दो. When the number of atoms present in any crystal system get arranged in only one plane, to horizontal plane तो रहने दो, अब इसको खड़ा कर दिया तो वर्टिकल प्लेन बन जाएगा. When they get arranged in only one plane, such type of unit cells we call it as what? One dimensional unit cells बोल के बोला जाता है. अब देखो, this is a one atom, it is a one lattice point, it is a another lattice point. The distance between two lattice points we call it as edge length. So when the atoms get arranged in one plane, एक ही एक्सिस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में अरेंज करोगे, they get associated with one edge length. एक एज लेंथ रहेगा, वन एज लेंथ. एंगल क्रिएट होगा यहाँ पे? नहीं. तो when all the atoms present in any unit cell get arranged in a one plane, they only depends on what? एज लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है. they depends on एज लेंथ. समझ में आ रहा है? डिपेंड्स ऑन एज लेंथ. दैट इज, क्या बोल के ले रहे हो एज लेंथ को? इट डिपेंड्स ऑन द एज लेंथ ए. कोई तो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? नो. तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? एक्सियल एंगल. एक्सियल एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है. देखो, वन डायमेंशनल यूनिट सेल मीन्स ऑल द एटम्स हैज टू बी अरेंज्ड इन ओनली वन प्लेन. एक्स एक्सिस की तरफ तो अरेंज करने दो, वाई पे तो अरेंज करने दो और जेड. व्हेन ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल सिस्टम गेट अरेंज्ड इन व्हाट? एक ही प्लेन पे अरेंज कर दिया, एक्स और वाई और जेड. कोई तो एक प्लेन पे अरेंज कर दिया गया. सच टाइप ऑफ यूनिट सेल वी कॉल इट एज वन डायमेंशनल यूनिट सेल्स बोल के बोला जाता है. देन द नेक्स्ट वन, टू डायमेंशनल यूनिट सेल्स बोल के बोला जाता है. टू डायमेंशनल यूनिट सेल्स बोलते हैं. इसका मतलब एज अ नेम सजेस्ट, टू डायमेंशनल, टू प्लेन्स में अरेंज होते हैं. वट एवर द एटम्स or the ions or the molecules or the lattice point present in a crystal system has to be arranged in two planes में arrange होना चाहिए. अब देखो, टू planes में बोले तो क्या आएगा? टू डायमेंशनल. तो कैसे आएगा? द एटम्स हैज टू बी अरेंज्ड इन व्हाट? एक्स वाई में तो अरेंज रहना चाहिए, और दे हैज टू बी अरेंज्ड इन एक्स जेड पे तो अरेंज रहना चाहिए,
और वाई जेड, कोई तो दो प्लेन में अरेंज रहना चाहिए. व्हेन द एटम्स प्रेजेंट इन एनी क्रिस्टल सिस्टम गेट अरेंज्ड इन एक्स एंड वाई और वाई एंड जेड और एक्स एंड जेड, टू प्लेन में अरेंज रहते हैं. दे गेट अरेंज्ड इन टू प्लेन्स. They get arranged in what? Two planes. Getting the thing? Example देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे. अब देखो यहाँ पे these are the atoms. अभी ऑलरेडी हमने पढ़ा है. यहाँ पे देखो, this is an example for XY plane. Some atoms get arranged in horizontal, some atoms get arranged in vertical. थोड़े atoms जो है x axis के तरफ जा रहे हैं, थोड़े y. तो when the atoms get arranged in x as well as y, तो टू डायमेंशनल में अरेंज हो रहे हैं, दो प्लेन में अरेंज हो रहे हैं. तो सच टाइप ऑफ एग्जांपल्स वी जनरली कॉल इट एज व्हाट? टू डायमेंशनल यूनिट सेल्स. गेटिंग द थिंग? टू डायमेंशनल यूनिट सेल्स बोल के बोला जाता है. दिमाग में रख लो, जब एटम्स प्रेजेंट इन एनी क्रिस्टल सिस्टम गेट अरेंज्ड इन टू डायमेंशनल पैटर्न, टू प्लेन्स में अरेंज करोगे, मेनली विल गेट 5 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री मिलता है. व्हेन यू ऐड द पॉइंट्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल सिस्टम, देखो यहाँ पे, when atoms or the ions or the molecule present in any crystal lattice get arranged in what? Two planes में arrange करोगे. Some of the atoms get arranged in x axis and some of the atoms get arranged in y axis पे arrange करोगे. Some of the atoms get arranged here, x axis पे arrange कर रहे हो, and some of the atoms get arranged in y axis. Arrange करने के बाद जब आप ये lattice point को combine कर दोगे, when you add the lattice point, we'll get certain ज्योमेट्री, सडन स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. दो स्ट्रक्चर्स वी जनरली कॉल इट एज ब्राइवियस लैटिसेस बोल के बोला जाता है. क्या बोल के बोला जाता है? ब्राइवियस लैटिसेस बोल के बोला जाता है. ब्राइवियस लैटिसेस. ब्राइवियस लैटिसेस का मतलब क्या होगा? देखो, द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स और ज्योमेट्री ऑब्टेन्ड when the points present in a crystal lattice get joined together. या पॉइंट्स को जब आप ऐड करोगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर्स मिलने शुरू होते हैं. वी विल गेट डिफरेंट मॉलिक्यूल विद डिफरेंट ज्योमेट्री. वो कितने ज्योमेट्री मिलेंगे, दोज वी कॉल इट एज व्हाट? ब्राइवियस लैटिसेस बोलते हैं. अब यहाँ पे देखो, व्हेन द एटम्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल सिस्टम वी हैव अरेंज्ड इन दिस पैटर्न, एक्स एंड वाई पैटर्न में अरेंज कर दिया. दो प्लेन में जब अरेंज कर दिया, तो जब हम ये पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स को कंबाइन जब करते हो, तो हमें एक यूनिट सेल मिला, एक ज्योमेट्री मिला, एक स्ट्रक्चर मिला. दैट स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज व्हाट? क्या है ये? स्क्वायर. स्क्वायर इज अ वन टाइप ऑफ ब्राइवियस लैटिस which is obtained when the atoms or ions exist in a crystalline solid get arranged in two planes. अब ऐसे अरेंज कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है? स्क्वायर. अब ये पैटर्न, ये एक लेयर है, सेकेंड लेयर मैंने ऐसे ले लिया, थर्ड, दिस इज अ बी लेयर, थर्ड लेयर सेम ले लिया, समझो ऐसे ले लिया. लेने के बाद देखो, सम आर अरेंज्ड इन एक्स एक्सिस, सम आर अरेंज्ड इन वाई एक्सिस. दो प्लेन में है. व्हेन यू ऐड द पॉइंट प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल लैटिस, ए क्रिस्टल लैटिस में जो स्पेस लैटिस में जो पॉइंट्स है, लैटिस पॉइंट्स, उनको ऐड कर दोगे, तो व्हेन यू ऐड द एरोज और पॉइंट्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल सिस्टम और अ यूनिट सेल विल गेट अ डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलना शुरू होगा. दैट स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज व्हाट? ब्राइवियस स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और ब्राइवियस लैटिसेस बोलते. दिमाग में रख लो, when the atoms or the ions present in any crystalline solid get arranged in two planes, x and y or x and z or y and z पे arrange करोगे, mainly will get 5 types of Bravais lattices मिलते हैं. क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, हाउ मेनी Bravais lattices आर पॉसिबल फॉर 2 डायमेंशनल यूनिट सेल बोल के. तो कितने Bravais lattices बनते हैं? 2 डायमेंशनल यूनिट सेल get associated with how many Bravais lattices?
तो इट मेनली फॉर्म्स व्हाट 5 ब्रावियस लैटिसेस मिलते हैं. दे मेनली फॉर्म व्हाट 5 ब्रावियस लैटिसेस मिलते हैं. दिमाग में जा रहा है. व्हाट आर दोज? तो फर्स्ट वन इज अ स्क्वायर बोलते हैं. मिल रहा था वहां पे. तो स्क्वायर का स्ट्रक्चर कैसे आएगा? ऐसे रहेगा. तो दिस ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स 1 लैटिस पॉइंट्स. ये चारों लैटिस पॉइंट्स को मैंने ऐड कर दिया तो एक स्ट्रक्चर बना. एक्स एंड वाई एक्सिस है, एक्स वाई. तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज एज लेंथ ए. द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 इज बी. तो दोनों स्क्वायर में सेम रहेंगे. क्या रहेंगे? सेम रहेंगे. फॉर अ स्क्वायर एज लेंथ ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू एज लेंथ बी. एक्सियल एंगल कितने क्रिएट होंगे? एक होंगे या 2 होंगे? कितने होंगे? एक ही क्रिएट होता है. सभी एंगल सेम ही रहेंगे. द एंगल ऑफ सेपरेशन इज ओनली 1. दैट वी कॉल इट एज अल्फा. कितना रहेगा? इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये याद रख लो, काम में आता है. एज लेंथ क्या रहेगा? एक्सियल एंगल क्या रहे? फॉर अ स्क्वायर एज लेंथ, इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहेगा. एंगल 90. Then next, rectangular. Rectangular. It is second type of Bravais lattice. Rectangular में कैसे होगा स्ट्रक्चर? ऐसे ही रहेगा. These are the 4 atoms. When you join together, we will get one type of Bravais lattice. We call it as what? Rectangular structure. The distance between these 2 atoms, we call it as edge length A. The distance between these 2, B. बोलोगे? ये 2 साइड्स इक्वल रहते हैं, 2 साइड्स इक्वल्स रहते हैं. रहेंगे. तो यहाँ पे A एंड B इक्वल रहेगा? नहीं रहता. तो एज लेंथ कैसे रहेगा यहाँ पे? A is not equals to B. एंगल कितना क्रिएट होगा? 90. तो अल्फा इक्वल्स टू व्हाट? ना रेक्टेंगुलर क्या होगा? एक्सियल एंगल इज इक्वल्स टू हाउ मच? 90. समझ में आ रहा है? व्हेन द पॉइंट्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल सिस्टम, व्हेन अरेंज्ड इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन, व्हेन यू जॉइन दीज प्लेन्स और पॉइंट्स को जॉइन करोगे तो मेनली हमें 5 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री मिलते हैं. दोज आर जनरली कॉल्ड इट एज ब्रावियस लैटिसेस बोल के बोला जाता है. तो फर्स्ट वन इज अ स्क्वायर, सेकंड वन इज व्हाट? रेक्टेंगुलर, थर्ड वन हेक्सागोनल बोल के मिल रहा था वहां पे. हेक्सागोनल. थर्ड वन हेक्सागोन बोल के बोला जाता है. थर्ड वन वी जनरली कॉल इट एज व्हाट? हेक्सागोन बोल के बोला जाता है. हेक्सागोन स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा इसका? ऐसे ही होना शुरू होगा. गेटिंग द थिंग? तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, व्हेन यू ऐड दीज लैटिस पॉइंट्स, विल गेट हेक्सागोनल पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट मिलेगा. तो इन दिस द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 इज A. द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 इज these 2 sides are equal. These 2 sides, all the sides are generally considered to be what? Equally रहेंगे. तो all the sides in a hexagon remains same. मैं यहाँ पे बड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ, आप करेक्ट ड्रॉ करोगे तो edge length A is always equals to what? B. In a hexagon स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? ऐसे रहता है. all the sides are generally considered to be what? Equal. Getting the thing? समझ में आ रहा है? एंगल कितना क्रिएट होगा यहाँ पे? कितना होगा? It is approximately 120. तो अल्फा is not equals to 90. 90. Axial angle cannot be equals to what? 90 degree. Axial angle 2 dimensional में एक ही axial angle रहता है. Then the fourth one, rhombus बोल के बोला जाता है. This is considered the 2 points. These are adjacent A. These 2 points B. A and B are equal. Angle 90 होगा? नहीं. तो alpha is not equals to 90 degree.
द लास्ट वन क्या बोलोगे? पैरेललोग्राम बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो कैसे अरेंजमेंट रहेगा यहाँ पे? This is the distance between these 2 points we call it as A. The distance between these 2 points we call it as B. These are the edge length. दोनों equal रह सकते हैं. A is not equals to B. Here angle 90 रह सकता है? नहीं. तो alpha is not equals to 90. These are the 5 types of Bravais lattices obtained when the atoms or the ions or the molecules present in any crystalline solid. कोई भी crystalline solid में जो atoms रहेंगे, मैंने ऐसे arrange कर दिया, 2 planes में arrange कर दिया. When you add the point present in this crystal system, we'll get a defined pattern of when you add the arrows or the points present in these crystal system, we'll get a different geometry के structures मिलेंगे. कितने मिलते हैं? 2000 Bravais lattices बोलते हैं. 2-dimensional unit cell में mainly will get what? कितने मिलते हैं? 5 Bravais lattices मिलते हैं. These are the things with respect to what? क्या बोलोगे? 2-dimensional unit cell. Then move towards the next one, 3-dimensional unit cell बोल के लिखो. Three-dimensional unit cells. 3-dimensional unit cells. तो इसका मतलब the atoms or the ions or the molecules present in a crystal system has to be arranged in 3 planes में arrange रहना चाहिए. They has to arranged in what? 3 planes. देखो क्या होगा. और खत्म हुआ. Then क्या बोला जाएगा? The 3-dimensional unit cells. याद रख लो, यहां से ही मेन आपका चैप्टर शुरू होता है. अभी तक जो था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मॉलिकुलर आयोनिक, वहां पे जनरली क्वेश्चन जनरेट होता है. अदर देन दैट द मैक्सिमम क्वेश्चन गेट जनरेटेड फ्रॉम दिस 3-dimensional unit cells. 7 crystal system डेवलप होते हैं. बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑन द पॉइंट हमें 14 Bravais lattices मिलते हैं. उनके बारे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है. तो 3-dimensional unit cell बोल के बोला जाता है. 3-dimensional unit cell का मतलब क्या होगा? The atoms or the ions or the molecule present in any crystal system has to be arranged in what? 3 planes. 3 planes में arrange होना चाहिए. The atom has to be arranged in x-axis, y-axis and z-axis. मैंने यहाँ पे एक एटम लिया समझो. Some atoms get arranged in x-axis, ऐसे arrange हुए हैं. Some atoms get arranged in what? Y and certain get arranged in what? Z-axis पे. तीनों प्लेन में अरेंज हुए. कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स रहेंगे, इफ दे गेट अरेंज्ड इन व्हाट? 3 प्लेन्स में अरेंज रहेंगे, तो वी जनरली कॉल इट एज व्हाट? 3-dimensional unit cell. द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट वी कॉल इट एज एज लेंथ A. The distance between these 2 points we call it as B. The distance between these 2 points we call it as C. तो कितने एज लेंथ होंगे इसके? 3 एज लेंथ होंगे. When the atoms get arranged in 3 planes, it depends on how many edge lengths? Depends on 3 edge lengths. 3 edge lengths के ऊपर डिपेंड रहेगा. What are those? A, B and C. देखो, इसे एक सेंटर पॉइंट बोल के मानोगे, यहाँ पे एक एटम बोल के मानोगे, तो एटम हैज टू बी अरेंज्ड इन 3 प्लेन्स. हमने क्या कर दिया? थोड़े एटम को एक्स एक्सिस पे अरेंज कर दिया. Some get arranged in Y, some get arranged in Z axis. तीनों प्लेन में अरेंज कर दिया. तो that type of arrangement we call it as 3-dimensional rules.
तीनों प्लेन पे अरेंज, जब तीनों प्लेन पे अरेंज कर दोगे, द डिस्टेंस बिटवीन द एटम एंड द एक्स एक्सिस पे जो एटम्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, दैट इज दीज आर द टू नेबरिंग एटम्स, गेटिंग द थिंग, प्रेजेंट इन एक्स प्लेन, दीज आर द टू नेबरिंग एटम्स, दोज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए ऐसे, दोज मस्ट बी कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, तो उसका क्या होगा, बी, हियर सी, तो डिपेंड्स ऑन 3 एज लेंथ, कितने एक्सियल एंगल क्रिएट होंगे, here is 1, so this is alpha, here is another beta, here is another, that is a gamma, so depends on how many axial angles, depends on 3 axial angles, that is alpha, beta and gamma. So when the atoms or the ions or the molecule present in any crystalline solid get arranged in 3 planes में arrange कर दोगे, तो उनके 3 edge lengths create होंगे and 3 axial angles create होंगे. एक simple example देखो, यहाँ पे एक arrangement देखोगे, this is a one, ज्यादा डिस्टेंस हो गए, देखो, these are the atoms, certain atoms get arranged in x axis, certain atoms get arranged in y axis. अब थोड़े एटम्स क्या करो, इनके ऊपर अरेंज कर दो ऐसे, ऐसे, दिस इज अ वन एटम, इनके ऊपर अरेंज कर दे रहे हो, दिस इज अनदर एटम, देन दिस इज अ थर्ड, दिख रहा है, देन नेक्स्ट, अब इनके ऊपर, अब देखो 3 प्लेन में नजर आ रहा है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई, एक सामने है, इसके ऊपर नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वी आर अरेंज द एटम्स इन 3 प्लेन्स में अरेंज कर दिया. अब इनके पॉइंट ऐड करके देखो, ये पीछे एक पॉइंट है, देखो यहां पर, दिस इज अ 1, सेकेंड, थर्ड, then this one is considered to be fourth है. अब यहां पे देखो, दिस इज अ 1 पॉइंट जो ऊपर है, दिख रहा है, ये समझ में तो आ रहा है, दिस इज अ 1 पॉइंट, दिस इज अनदर, थर्ड, फोर्थ है. अब ये पॉइंट को ऐड करके देखो क्या होगा, ऐड कर दिया ये चारों, देन ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद यहां पे एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, व्हेन एटम्स यहां पे कितने प्लेन में अरेंज हुए हैं, सम आर अरेंज्ड इन एक्स, सम आर अरेंज्ड इन, वो जो ब्लू से मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया है उसके सामने है या उसके ऊपर है, गेटिंग द थिंग, समझ में आ रहा है. जैसे ही वो सभी पॉइंट को ऐड कर दोगे तो हमें एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दैट स्ट्रक्चर वी कॉल इट एज व्हाट, क्यूब बोल के बोला जाता है, गेटिंग द थिंग, दिस इज अ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बोल के बोला जाता है, समझ में आ रहा है. व्हेन एनी एटम और अ मॉलिक्यूल or ion present in any crystal system get arranged in what, how many planes, 3 planes में arrange कर दोगे. when you arranged in the 3 planes, some are arranged in x, some are arranged in y, ये जो blue circles दिख रहे हैं ये z axis के तरफ है, तो ये सभी points को जब आप add कर दोगे, when you add the point present in a crystal system, हमें एक structure develop हुआ, that structure we call it as,
क्या बोल के बोला जाता है? ब्रेवियस लैटस और क्रिस्टल सिस्टम बोल के बोला जाता है। दिमाग में जा रहा है? दिस इज अ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। देखो ऐसे पॉइंट्स ऐड करने के बाद दिमाग में रख लो, व्हेन एटम्स और द आयन्स और द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एनी क्रिस्टल सिस्टम गेट अरेंज्ड इन 3 प्लेन्स में जब अरेंज करोगे, व्हेन यू ऐड द पॉइंट प्रेजेंट इन दीज क्रिस्टल सिस्टम्स, ऐड करोगे तो मेनली यू विल गेट 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स मिलते हैं। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम मिलेंगे। इन दोज क्रिस्टल सिस्टम्स द पॉइंट गेट अरेंज इन 14 टाइप्स में अरेंजमेंट किया जाता है। दोज 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जनरली सीन इन 7 क्रिस्टल सिस्टम, वी कॉल इट एज ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स प्रेजेंट इन ए क्रिस्टल लैटिस। तो नीचे लिख लो, ये हुआ क्यूब भी बना है, हाँ क्यूब भी बना है, हाँ क्यूब भी बनना चाहिए वो, हाँ हाँ दैट हैज टू फॉर्म व्हाट क्यूब। कुछ नहीं है ऐसे फर्स्ट एक्स एक्सिस पे तरफ थोड़े वाई, तो ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करो ऐसे, चारों पॉइंट को, दिस सर्कल हैज टू मीट दीज 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट जो सर्कल ड्रॉ करोगे ये चारों पॉइंट को मीट करना चाहिए। थर्ड चारों, ये जो ऊपर जो 4 सर्कल को मीट करा रहा है, दोज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ड्रॉ करो, क्यूब मिल जाएगा। गेटिंग द थिंग? समझ में आ रहा है? तो नीचे लिख लो, द 3 डायमेंशनल यूनिट सेल मेनली कंसिस्टिंग ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। The 3 dimensional unit cell mainly consists of the 3 dimensional unit cell mainly consists of 7 crystal systems. ऐसे एक क्यूब मिला है, दिस क्यूब वी कॉल इट एज क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। दिस इज अ 1 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम 1। अब इसमें जो है एक क्यूब का स्ट्रक्चर आप जब ड्रॉ करोगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब। एक स्ट्रक्चर मिला मुझे यहां, दिस वी कॉल इट एज व्हाट क्यूब। क्यूब के स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देखोगे, देखो यहां पे इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब, व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर, द क्यूब मेनली कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, क्यूब का स्ट्रक्चर देखोगे, दिस इज 1 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। When the points present in the lattice point present in a 3 dimensional unit cell get joined together, mainly we will get how many crystal systems? 7 crystal system मिलते हैं। The 1 type of crystal system is a cube. जब cube का structure आप अच्छी तरह से देखोगे, it is mainly consisting of how many corners here? कितने corners रहते हैं? Corners in a cube 8 corners रहेंगे। Getting the thing? समझ में आ रहा है? 1 and second thing, cube में faces कितने रहते हैं? 6। अब कोई भी यही, इसको ही आप क्यूब बोल के मानोगे। 1 2 3 4 5 6, टोटली 6 फेसेस रहेंगे। दीज वी कॉल इट एज व्हाट, फेसेस बोल के बोलते हैं। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6। गेटिंग द थिंग? दीज आर द फेसेस 1 2 3 4। ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, लेफ्ट राइट, एक सामने एक पीछे। तो टोटली हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस। गेटिंग द थिंग? यही इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों लिखा रहा हूं? बचपन में आपने पढ़ा होगा ये सभी। हाँ सर अभी भी बचपन में ही है, हाँ अभी भी पढ़ रहे हैं। तो फेसेस कितने होंगे? 6। दिस प्लेज द वाइटल रोल। आगे जब आप पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ोगे, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब when the atoms present in any crystals get arranged in this pattern, if it will form cubical crystal system बनेगा। तो एटम्स कहाँ पे अरेंज हुए? कॉर्नर पे जो अरेंज होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन अलग ही रहता है। कॉर्नर्स पे जो इंसान बैठता है यहाँ पे, वो बाजू वाले के साथ शेयर होते हुए रहता है। कितना शेयर होगा तो इसको कितना मिला। फेस के ऊपर जो बैठा है वो भी शेयर हुए सो रहता है। अब 10 डब्बे, एक बॉक्स, ये बॉक्स रख दिया मैंने ऐसे, तो कॉर्नर भी शेयर हो रहा है। दीज आर द 2 बॉक्सेस, क्यूब्स है। इसके फेसेस भी शेयर हो रहे हैं, दोनों के बीच में कॉर्नर्स भी शेयर हो रहे हैं। तो जो इंसान, जो एटम कॉर्नर पे रहेगा, फेसेस पे रहेगा, वो कभी भी शेयर्ड कंडीशन में रहता है। देन सेंटर में क्या है? दिस पोजीशन वी कॉल इट एज सेंटर ऑफ द क्यूब बोलते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? द सेंटर ऑफ द क्यूब वी कॉल इट एज व्हाट? बॉडी सेंटर बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? कितने रहते हैं? एक ही रहेगा, द सेंटर ऑफ द क्यूब।
और सेंटर ऑफ एनी क्रिस्टल सिस्टम वी कॉल इट एज बॉडी सेंटर बोलते हैं। कभी भी कितना रहता है, वो शेयर हो सकता है। अब बॉक्स के अंदर मैंने ये चॉकपीस रख दिया सेंटर में, ये किसी के साथ तो शेयर होगा नहीं, तो बॉडी सेंटर पे जो एटम रहेगा वो किसी के साथ भी शेयर नहीं होगा। एंड एज सेंटर्स बोलते हैं। एज सेंटर का मतलब ये, दिस इज वन एज, दिस इज अनदर एज, इन दोनों के बीच में जो ये पॉइंट रहेगा, दिस पॉइंट वी कॉल इट एज व्हाट, एज सेंटर। कितने रहते हैं गिनो, कितने, 12 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना तो याद रख लो, बिकॉज आपके सिलेबस के लिए क्यों भी पढ़ना है आपको। 7 क्रिस्टल सिस्टम नहीं पढ़ने हैं हमें, उसके स्ट्रक्चर आपके बुक में दिए हैं, वो हमें ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी कब होता था, जो आपको याद रखना है कैसे याद रखोगे, वो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा आपको कैसे याद रखना है। क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है उसको कैसे याद रखना है, आई विल प्रोवाइड यू द सिंपल ट्रिक। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ ऑल द 7 स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करे, एक्सियल एंगल कैसे याद रख ले। द क्वेश्चन यहाँ पे यही डेवलप होता है कि व्हेन द एटम प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल सिस्टम गेट अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल पैटर्न, 7 क्रिस्टल सिस्टम डेवलप हो। वो कौन से, 1, the atom present in those crystal system get arranged in different pattern। जब different pattern में arrange करोगे तो will get 14 Bravais lattices मिलते हैं, 14 टाइप ऑफ अरेंजमेंट मिलते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। वो अरेंजमेंट कौन से है वो पढ़ना है आपको। When 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट मिलेंगे, उनका एज लेंथ चेंज होगा और एक्सियल एंगल चेंज होगा। तो वो एज लेंथ क्या रहेगा, ए बी सी सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे, अल्फा बीटा गामा सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे। क्वेश्चन उसी के ऊपर आपको पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो कैसे याद रख ले, ओ देख, इतना तो मालूम हुआ, क्यूब कॉर्नर्स 8 रहेंगे। यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, जो 8 एटम्स, ईच कॉर्नर गेट एसोसिएटेड विथ 1 एटम। जो कॉर्नर पे एटम जो रहेगा, इट इज शेयर्ड बिटवीन 8 अदर एटम्स। ये चुप याद रख लो, आगे भी पढ़ा दिया तो चलेगा, फिर भी याद रख लो, काम में आएगा। तो इसका मतलब जो एटम कॉर्नर पे रहेगा, द एटम दोज आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर में रहेंगे, वो कितने लोगों के बीच में शेयर हुए से रहता है, 8 लोगों के बीच में शेयर हुए से रहता है। द एटम्स प्रेजेंट इन अ कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑलवेज शेयर्ड बिटवीन 8 अदर यूनिट सेल्स बोल के लिखे, अदर यूनिट सेल्स। अब इधर एक क्यूब रहेगा, उसके साथ भी शेयर हुए से रहता है, तीसरा, फोर्थ, कितने ऐसे क्यूब के साथ शेयर हुए से रहता है, 8। तो इसके पास कितना रहेगा, टोटली एक रोटी है आपके पास, 8 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपके पास कितना बचा, 1/8। तो ईच एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर गेट शेयर्ड बिटवीन 8 अदर क्यूबिकल यूनिट सेल के बीच में शेयर हुए से रहते हैं। तो एक क्यूबिकल यूनिट सेल में कितना रहेगा, वो 1/8 ही रहेगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज, कॉन्ट्रीब्यूशन हाउ मच, 1/8। तो पूछा गया, द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब जनरली शेयर्ड बिटवीन 8 अदर यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है। तो एक यूनिट सेल का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, तो 1/8। जो फेसेस पे रहेंगे, अब देखो ये दोनों ऐसे मैंने लगा दिया है, तो द एटम, अज्यूम दैट दिस इज अ क्यूब, यहाँ पे एक एटम है, अब बाजू में एक क्यूब आया है, तो द एटम प्रेजेंट एट द फेस गेट शेयर्ड बिटवीन 1 and 2। उससे ज्यादा शेयर हो सकता है नहीं। तो इसका मतलब जो एटम फेस पे रहेगा, द एटम दोज आर प्लेस्ड एट द फेस ऑफ द क्यूब आर जनरली शेयर्ड बिटवीन 2 अदर यूनिट सेल। तो कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, आधा आधा होता है, जो फेस पे रहेगा इसके अंदर आधा, उसके अंदर आधा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1/2। समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट, जो बॉडी सेंटर पे रहेगा वो शेयर होगा नहीं, इट कैनॉट बी शेयर्ड। शेयर्ड बिटवीन अदर यूनिट्स। तो कंट्रीब्यूशन टोटली
1। सेंटर में समझ में तो आ रहा है, कंफ्यूजन मत कर लो, गेटिंग द थिंग, समझ में आ रहा है। तो जो एटम यहाँ पे सेंटर में रहेगा वो शेयर नहीं होता है। अब फेस पे है समझो, दिस इज अ एटम प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, फेस सेंटर पे इधर एक क्यूब आएगा बाजू में, अब बाजू में एक क्यूब बैठ गया है इसके, तो दिस एटम, हाफ ऑफ द एटम गेट प्लेस्ड इन दिस क्यूब एंड हाफ ऑफ द एटम गेट प्लेस्ड इन दिस क्यूब, तो टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर 1 यूनिट सेल हाफ। तो जो एटम एज सेंटर पे रहेंगे, द एटम्स दोज आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर, दोज आर शेयर्ड बिटवीन 4 other unit cell. फोर अदर यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल के बीच में शेयर हुए सो रहते हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1। तो एक यूनिट सेल में कितना रहेगा, 25% रहेगा, 25% समझ में आया, गेटिंग द थिंग। तो ये चुप याद रख लो, देखो when the atoms get arranged in what 3 dimension में अरेंज करोगे, mainly will get 7 crystal system, those are having 14 different type of arrangement, those we call it as what, Bravais lattices। एक काम करो, नीचे एक कॉलम बना दो, एक कॉलम नहीं, 1 2 3 4 5 कॉलम बना दो, make the 5 columns, ये निकाल दो इसे, निकाल रहे, मेक द 5 कॉलम। फर्स्ट कॉलम में लिखो क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कैसे याद रख ले सर, वो 7 कौन कौन से है पूछा गया, गेटिंग द थिंग। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब एटम 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करते होगे तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स डेवलप होते हैं, 7 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, उसको हम क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। दोज एटम प्रेजेंट इन दीज क्रिस्टल सिस्टम कैन बी अरेंज्ड इन 14 डिफरेंट पैटर्न में अरेंज कर सकते हैं, दोज आर ब्रावियस लैटिसेस बोल के बोला जाता है। तो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कौन से रहेंगे, फर्स्ट वन दिस इज अ क्रिस्टल सिस्टम, सेकेंड में लिखो ब्रावियस लैटिसेस, Bravais lattices, Bravais lattices, getting the third one एज लेंथ, उनमें एज लेंथ क्या रहेगा, गेटिंग द थिंग। एज लेंथ कितने रहते हैं 3 डायमेंशनल यूनिट सेल के, 3 रहेंगे, ए बी सी, वो तीनों सेम रहेंगे। अब क्यूब में क्या था, ए बी सी रिमेन्स सेम थे, गेटिंग द थिंग। तो कैसे चेंजेस होगा, एज लेंथ। नेक्स्ट एक्सियल एंगल्स, लास्ट में एग्जाम्पल फॉर दीज टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, एग्जाम्पल्स। सर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, देखो क्वेश्चन यहीं पे अराइज होता है, जब आप बुक देखोगे तो आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। एक फर्स्ट आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखना होगा, सेकंड ड्रॉ करने के बाद एंगल पता होना चाहिए, थर्ड उतना सीखने के लिए जनरली इट विल रिक्वायर मैक्सिमम टाइम। तो सिंपल वे में मैं ट्रिक बता दूंगा, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कौन से है। तो दीज आर जनरली रिमेंबर्ड एज कैसे, सिटॉर HMT बोलते हैं। HMT तो याद रहता ही है, उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, तो एक याद रखना है सिटॉर HMT। दीज आर द 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, या 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। व्हाट आर दोज, सिटॉर HMT। C means cubical or cubic, getting the thing। T means tetragonal, O means orthorhombus or rhombic, this one is rhombic, और simply call it as trigonal बोल के भी बोला जाता है।
हाँ, इसे सिटॉर HMT बोल के तो याद रख लो, और सिटॉट बोल के बोलते हैं, CTOT ट्राइगोनल, और सिटॉर HMT। H मीन्स हेक्सागोनल, M मीन्स मोनोक्लिनिक, T मीन्स ट्राइक्लिनिक। These are the 7 type of crystal system। क्या? सिटॉर HMT बोलते हैं। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। क्यूब बोलते हैं, क्यूबिकल। क्यूबिकल का मतलब अरेंजमेंट कैसे रहेगा? देखो, अभी अभी मैंने बोला था दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब। गेटिंग द थिंग? सर अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट होगा? ब्राइवियस लैटिसेस का मतलब क्या है? दिस क्रिस्टल सिस्टम वी कॉल इट एज क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब में जो है एटम्स कॉर्नर्स में ही रह सकते हैं, कॉर्नर के साथ साथ फेसेस में भी रह सकते हैं, बॉडी सेंटर के पास भी रह सकते हैं, और एज सेंटर पे ऊपर भी रह सकते हैं। देखो क्या होगा। अब दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। इफ ऑल द एटम्स, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम में, इफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड गेट अरेंज्ड इन व्हाट? कहां पे अरेंज हुए? कॉर्नर पे अरेंज हो गए। देखो, based on the arrangement of atoms in a crystal system, they get categorized into what? 14 Bravais lattices। तो अरेंजमेंट कैसे चेंज होगा? देखो, एक क्यूब है, एक क्यूब में जितने भी एटम थे कहां पे अरेंज हुए हैं? कॉर्नर। If all the atoms present in any crystal system get arranged at the corners of the cube, then that type of Bravais lattice we call it as simple all प्रिमिटिव बोल के बोला जाता है। सिंपल और प्रिमिटिव। सिंपल और प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम का मतलब, कोई भी क्रिस्टल सिस्टम को सिंपल कब बोलोगे, प्रिमिटिव कब बोलोगे? अब एक क्यूब इज अ क्रिस्टल सिस्टम। When all the atoms present in this crystal system has to be arranged in what? कॉर्नर पे अरेंज हुए। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम एक ब्राइवियस लैटिस का नाम देंगे। दैट ब्राइवियस लैटिस वी कॉल इट एज सिंपल और प्रिमिटिव बोल के बोला जाएगा। गेटिंग द थिंग? 1। अब सेकेंड वन, दिस इज अ क्यूब, वही सेम क्रिस्टल सिस्टम है। अब एटम्स कैसे अरेंज हुए? देखो, द एटम्स प्रेजेंट इन अ क्रिस्टल सिस्टम आर अरेंज्ड इन, कहां पे अरेंज हुए हैं? कॉर्नर पे। कॉर्नर के साथ साथ द अलोंग विद द कॉर्नर वन ऑफ द एटम इज अरेंज्ड एट बॉडी सेंटर पे अरेंज हुआ। तो देखो अरेंजमेंट चेंज हुआ। यहां पे सिर्फ कॉर्नर पे अरेंज थे। When the atoms get arranged at the corners of the crystal system, we call it as simple or a primitive type of Bravais lattice बोलते हैं। When atoms present in any crystal system get arranged in the corners, along with the corners, one atom is present at body center. Corner and body center पे arrange रहे तो that type of Bravais lattice we call it as body centered बोलते हैं। क्या बोल के बोला जाता है? Body centered बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये याद रख लो। These are the having different type of arrangement. अरेंजमेंट डिफरेंट रहा तो डिफरेंट ब्राइवियस लैटिसेस मिलेंगे। तो क्यूब इज अ क्रिस्टल सिस्टम। अभी क्रिस्टल सिस्टम में अरेंजमेंट डिफरेंट रह सकता है। बेस्ड ऑन द डिफरेंट अरेंजमेंट विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राइवियस लैटिस मिलेंगे। कॉर्नर पे हुआ तो सिंपल ब्राइवियस लैटिस, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर पे मिला तो बॉडी सेंटर ब्राइवियस लैटिस। एंड थर्ड वन, दिस इज द वन, ऐसे है समझो। इफ सम ऑफ द एटम्स गेट अरेंज्ड एट, कहां पे? कॉर्नर्स पे। अलॉन्ग विथ कॉर्नर्स सम ऑफ द एटम्स गेट अरेंज्ड एट कितने? फेसेस पे। If the atoms present in a cubical crystal system get arranged at corner as well as face centers, then that type of Bravais lattice we call it as face centered बोल के बोला जाता है। क्या बोल के बोला जाता है? face centered। Getting the thing? समझ में आ रहा है? The last one,
यहां पे, this is the 4 type of Bravais lattice. The atom has to be arranged at corners. Along with the corners, 1 or 2 atoms get arranged at ends, the ends of the faces. Faces के ends पे arrange होते हैं. Getting opposite ends पे arrange होते हैं. When atoms present in any crystal system get arranged at the corners and the opposite faces पे अरेंज हुए, तो एंड्स ऑफ द फेसेस पे अरेंज हुए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंड सेंटर बोल के बोला जाता है. क्या? एंड सेंटर बोल के बोला जाता है. तो समझ में आ रहा है? तो दिस इज, देखो, एक ही क्रिस्टल सिस्टम है, बट हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट. दीज वी कॉल इट एज ब्रेवियस लैटिसेस. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमें टोटली 14 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट मिलते हैं. दोज 14 अरेंजमेंट वी कॉल इट एज 14 ब्रेवियस लैटिसेस बोल के बोला जाता है. तो 7 क्रिस्टल सिस्टम तो समझ में आया, अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट रहता है समझ में आया. अब नेक्स्ट ब्रेवियस लैटिसेस, इसमें कितने ब्रेवियस लैटिस बन सकते हैं, इसमें कितने बनेंगे वो देखेंगे, वो याद रखना है, पूछा जाता है. क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में कितने ब्रेवियस लैटिस है, कितना डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो सकता है? 3 हो सकता है. एक फोन नंबर याद रखना है, 3 2 4 1 1 2 1. दिस इज योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर है समझो. 3 2 4 1 1 2 1. इसका मतलब क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम विल शो 3 ब्रेवियस लैटिसेस. कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये 2 बताएगा. गेटिंग द थिंग? कौन कौन से? सिंपल एंड बॉडी सेंटर. ये चारों के चारों बताएगा अरेंजमेंट. ये 1 बताएगा सिंपल, ये 1 सिंपल, ये 2 बताएगा सिंपल एंड एंड सेंटर. लास्ट में सिंपल. तो 3 2 4 1 1 2 1. दिस आर द 14. ऐड करो 14 ही बनेंगे. एडिशन आते हैं? हाँ, करके देखो कितने बनेंगे? 14 ब्रेवियस लैटिसेस बनेंगे. तो ये 14 ब्रेवियस क्वेश्चन वही पूछा जाता है, क्यूबिकल कितना बनेगा. तो सिट और HMT याद रखा, ये ऑर्डर याद रखोगे तो ये फोन नंबर वर्क करता है. हाँ, ये ऑर्डर चेंज हुआ तो ये फोन नंबर डेड हो जाएगा. गेटिंग द थिंग? तो सिट और HMT 3 2 4 1 1 2 1. These are the 14 ब्रेवियस लैटिसेस. गेटिंग द थिंग? अब सर एज लेंथ कैसे याद रख ले? एज लेंथ याद रखना है तो यू मस्ट बी फैमिलियर विद स्ट्रक्चर्स, याद रहना पड़ेगा. तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा. आपके बुक में स्ट्रक्चर दिया सो है. वो स्ट्रक्चर आपको मेनली क्यों दिया गया है? टू रिमेंबर द एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स. सर विदाउट सीइंग द स्ट्रक्चर्स एज लेंथ कैसे याद रख ले? तो कैसे याद रख ले? सिंपल ट्रिक है. इसके लिए उतना याद रख लो, ये पूरा कॉलम याद रह सकता है. गेटिंग द थिंग? थैंक यू सर.